Hello friends, welcome to Handset Nifty channel. Vikram this side. I just can't stop myself thinking about this chart. There are a lot of observations I would like to add and also want to correct some of the previous observations. There are many things that could go wrong. So I'll just tell you how to handle such trades. Since in every low we can see there is a reversal, and every time it looks like there could be a reversal, momentum market keep falling. It happens whenever there is a small pullback trend, then that trend can last for whole day, and you will be thinking that yes, there will be reversal. You might think that yes, there can be a reversal here, there can be reversal here, but market keeps falling. Gaps are being created until there is a reversal bar. We might not we can't confirm that there is a gap, so we also have to look for the follow bars, and there are a lot of things. I'll explain everything in brief. But in case if mistakenly you take some of the trades which you are not supposed to take, then how you can handle that, and how you would realize that yes, market is not going in your direction, and you are not supposed to be using any swing stop. You should be using scalp stop. I mean the stop which should be half of the swing stop, or you can also trade 1/3 quantity which you are trading, which you trade for the swing. So let's get started. So market gapped up, then there is a bear bar, strong bear bar. If there is a strong bear bar, there are also chances that you might get major move down. So major move down means you can project, let's say there are if there were two bear bars, strong bear bars, then we would have projected both high of the first bar and low of the second bar as a major move target. So you can see this is the major move target, and exactly at the major move you can see there is some buying. It shows that computers are booking the profit here at this location. Now okay, this is the major move target, so we always have to keep our eyes on the major move target. Here we see there is a strong rally. We can expect some bounce here. Now let's say all right, so there is upper trading range. What are resistances here? First resistance is low of the trading range, tight trading range. Second resistance is EMA. If there are multiple confluence factors, then we can say that there are higher chances of reversal or pullback. Depends. See, when I say pullback means trend will continue, and when I say reversals mean trend will reverse. This trading range, tight trading range, can act as a final flag. There are many final flags like inside bar, parabolic wedge. So there are many other final flags, but we'll not go into those in details. So right now we know that there is a bear bar, strong bear bar. After strong bear bar, there is a bull bar. If you look at the CE chart, on the index chart, this bull bar is closing at its high, but on in CE we can see there are wicks above and below. Now let's say you think that market is strongly rallying up. This can be the final flag. For 20 or more bars, market is above the EMA. There are chances that there would be some buyers here above this bar, and market can rally and test this high. But as I told you, this can be the resistance, and you buy here. So if you are buying here, then how much quantity you should be buying, and where should be your stop loss? Now first thing, you cannot use swing stop loss here, and you might think to use the stop loss, which I usually say that this is check the body of the bar, high and low, project the same below and use that. To use such stop loss, you need to see the previous price action. See, previous price action matters. It depends on it depends on the previous price action whether you should be using big stop loss or Kung stop loss. Kung stop loss means the stop loss exactly at the low of this bar.
So whenever next bar triggers the low of this bar, you should get out of the trade. So let's say as soon as this bar closes, you are buying. There are some interesting observations. See, this is big bull bar, which will help you to manage the trade. If you look at the option, look at the option chart, this bull bar is even not triggering high of this bar. But anyways, you bought it here as soon as this bar closes, and you were thinking that market would rally and test this high. Your initial stop loss was below this doji bar. Now market moved in your direction. What I was expecting here, see, if market has to rally, or if we supposed to get taste of this high, in that case there has to be a strong consecutive bull bars. In case if follow bar is not as we are expecting, then market might continue down. And since this is a strong bull bar, if market breaks, let's say we are using if you, in second case, let's say if we are using our stop loss here, and if market breaks below, then it would break violently there. Since this is a big bear bar, it might be the case that the next bar would be the big bear bar, and that's the reason I'm not saying you should be using I'm not suggesting to use this stop loss or big stop loss. So you bought it here, market moved in your direction, initial stop loss was below this bull bar. Now as soon as this bar closes, you have to make sure that you are going to switch your stop loss below this bar. Now why? The reason is we are expecting strong follow bars. Since market is in strong bear trend, or there is a strong bear bar, as I told you, there are chances that market might break below violently. And as you can see here, even this bear bar low is above this bull bar open or low, still market failed far below. So such situation we want to avoid. So that's the reason if at all you are buying here, you have to make sure that you are putting your stop loss here. So you will lose 1 or 2 points. So if I see the open of this bar, which is 329 and low is 326, so if at all you are putting your stop loss as 326, you would lose 3 points. That's okay. See, loss is the part of the game. I'm just telling you, in case if you mistakenly buying or taking such trades, then how you supposed to manage them, because that is the most important part. Now we know, as we can see, there is a strong rally here. So what we can expect here? There are no strong consecutive bear bars, so you might think to buy here. So even though this is not reasonable, the reason is market is breaking below, and we know that there is no strong rally here, so expecting sudden reversal here is low probability bet. Still you bought it here. As soon as high of this bar got triggered, you bought. Now where you should be using the stop loss? Now here scenario is changed. So here you can use I suggested that we should not be using stop loss, and scalp stop loss or bigger stop loss. We should be using Kung stop. Now here, since the follow in follow bars, there are no strong bear bars, there are no big bear bars, and that's the reason what we could do here, we could use we just have to project this bar, high and low of this bar, and use the same stop loss here. So how much quantity you are trading? Let's say here you are trading, as I told you, since these are low probability bets, 1/3 quantity, but stop loss should be here. So manage your trade accordingly, or manage option strike price accordingly. If you are buying here, you have to make sure that you are using bigger stop loss. You should not be using 1/3 stop loss and keeping that stop loss here. Why? Momentum is not strong. What we are expecting? We are expecting that since there is a rally, there might be a case that market would rally here, give some bounce, then there might be a disappointment, and then market can rally again. So that's the reason we are using large stop loss.
it usually happens that whenever there is a climax, market usually falls below the climax and then it reverses. So we are not expecting sudden reversal here. Let's say you are expecting that yes, there is a micro double bottom, market might rally and now test this high or this high. Since there are 4 consecutive strong bear bars and there is no initial buying pressure, so this can be the low probability bet, and this bar is not strong bull bar, and that's the reason you have to trade 1/3 quantity and use the bigger stop loss. ऑलराइट, तो नेक्स्ट बार पे मान लीजिए रिवर्सल आता है, आई मीन वी कैन सी हियर रिवर्सल आता है एंड दैट बियर बार इज क्लोजिंग एट इट्स लो. जैसे ही ये बार क्लोज होता है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसका लो ट्रिगर होता है तो आपको एग्जिट करना है. हम यहाँ पे देखिए, हमें इसलिए हर बार प्रीवियस ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉलो बार्स रिवर्सल या पुल बैक से वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें पुल बैक कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है मिला है. यहाँ पे एक बार है, उसके बाद फिर और एक बियर बार बना है और उसका नेक्स्ट बार ने लो निकाला है. अगर ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए कि चांसेस यहाँ पे चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करें. तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ किया है और स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, यहाँ पे हमें छोटा यूज़ करना था, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ किया है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, ये हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है, इसलिए हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना है. तो मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ पे होती, आपने जितनी भी ट्रेड करते हो क्वांटिटी उससे 1/3 ही क्वांटिटी ट्रेड करनी है क्योंकि हम रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हैं. तो इसका जो हाई है वो है 308 और ये जो बार का क्लोज है वो है 296. सो ऑलराइट, सो यू वुड लूज 12 points. So here you lost 3 points. So overall in these 2 trades you lost 15 points. Okay, we'll see how to how to manage other trades, and then we'll at the end we can think whether we close the day in profit or in loss. तो अभी हमें 15 पॉइंट का लॉस हो चुका है. उसके बाद मार्केट स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, पर जैसा मैंने बताया यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा और ये बार के नीचे हमारा सेल बिल्कुल नहीं बन रहा. सेल इसके नीचे क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव, जैसे मैं बताया, बियर बार्स मिसिंग है. उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं. पर अगर ये मैं इमीडिएट लिख देखता हूँ तो इसमें बियर बार्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं. जैसे ये बार क्लोज होता है, डोजी बार क्लोज होता है, क्या हम बाय कर सकते हैं? यस. हमें यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है? यहाँ पे ये भी जो हम विद ट्रेंड ले रहे हैं, हमारे पास 2 चॉइसेस हैं. एक तो हम 1/3 क्वांटिटी ट्रेड करें, सेकंड चॉइस हमारे पास ये है कि हम स्विंग की क्वांटिटी मतलब 50% क्वांटिटी ट्रेड करें. अब ये दोनों में से कौन सी क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है? तो आई सजेस्ट टू यूज़ ट्रेड 1/3 क्वांटिटी ओनली. अब रीज़न क्या है उसका? क्योंकि ये रिवर्सल स्ट्रॉन्ग है, चैनल टाइट है, हो सकता है मार्केट यहाँ से डिप करें, पर जबकि ये रिवर्सल स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमें अभी 1/3 क्वांटिटी ही ट्रेड करनी है. तो मान लीजिए आपने यहाँ पे ये जैसे बार क्लोज होता है आपने सेल किया, आपका स्टॉप लॉस क्या है? ये स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं इसके नीचे. तो आपका यहाँ पे सेल होता, फॉलो बार देखने हैं और ये हमारे लिए एक टारगेट है. तो मार्केट यहाँ पे आता है 263 और यहाँ पे तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं. अब 20 पॉइंट्स में आपने जितनी क्वांटिटी ट्रेड किया उसका 50% आपको निकालना है. 50% मैं हमेशा क्यों बोलता रहता हूँ या फिर मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि मिनिमम आपको 2 क्वांटिटी भी ट्रेड करनी है, क्योंकि वो आपका लॉस मिनिमाइज करने के लिए हेल्प करता है. इसलिए यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स मिले. ऑलराइट, तो हमें 15 पॉइंट्स का लॉस हुआ था, यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिले हैं. हम हाफ ऑफ द क्वांटिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं. उसके बाद हमें वेट करना है, फॉलोअप कैंडल देखना है. अगर मार्केट रिवर्सल आता है तो हम रिमेनिंग एग्जिट कर लेंगे. तो 15 जो लॉस हुआ है हम मान लीजिए आप 2 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो तो 15 जो पॉइंट्स का लॉस है वो आपको आपकी 2 क्वांटिटी पे हो रहा है. यहाँ पे 2 क्वांटिटी पे आप प्रॉफिट में हो, पर हमें अब ये नहीं पता है कि क्या यहाँ से मार्केट बाउंस करने वाला है या फिर नीचे ब्रेक करने वाला है. तो ये हो सकता है
कि आप ऐसा मान लो कि हाँ अब मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ तो मैं यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लेता हूँ, वो एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने बताया कि आपके 2 ट्रेड्स ऑलरेडी लॉस में जा चुके हैं। आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास ब्रेक इवन पे आने का मौका है, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से कुछ बाउंस मिले। पर हमें हमेशा याद रखना है कि हमें जो भी अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस हैं वो प्रॉफिट या लॉस को देख के नहीं लेना है। तो इन केस आप यहाँ पे मान लीजिए सेल करते हो, जैसा मैंने बताया यहाँ पे आप अगर कुछ क्वांटिटी बुक करते हो, क्योंकि हमें अपना जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस हमें एट द एंड ऑफ 100 ट्रेड्स मिनिमम आप ऐसा मान लीजिए 10 ट्रेड्स 20 ट्रेड्स उसके बाद देखना है। 2 ट्रेड्स हमारे अगेंस्ट के, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे अब हम प्रॉफिट में आ रहे हैं तो हमें ऐसे क्लोज करना है। तो ये ऐसे आप इसे प्रीफर नहीं करना है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपने 50% क्वांटिटी बुक की है, रिमेनिंग देखना है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। नेक्स्ट बार अगर इसका लो निकलता है हमें एग्जिट करना है। डिसअपॉइंटमेंट है पर इसका लो नहीं निकलता है, इसका क्या अगर हाई निकलता तो क्या हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं? यस, तब हम सोचते हैं। तो इसका जो लो है 74 और इसका लो है 76, तो नेक्स्ट बार ने इसका लो नहीं निकाला है क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से डिप करे, तो हम वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट ने वायलेंटली, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ सपोर्ट लेता और एकदम से नीचे आता तो उस केस में हमारा जहाँ पे भी हमारा बाय था हमें मेक श्योर करना है कि हम एटलीस्ट, देखिए 2 चॉइसेस हैं इस केस में। 50% आपने यहाँ पे बुक किए हैं, पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि ये जो स्विंग हाई है ये यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करो, पर अगर मार्केट इसके बाद ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली नीचे आए। तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया है तो आपका ये जो स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस पे आपको रिले रहना है, तो हमें यहाँ पे फिर ये स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विच नहीं करना है। तो आपने यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक किया है, रिमेनिंग फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फिर एक स्ट्रॉन्ग फॉलो बार आता है, फिर डोजी बार है, हमें यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे वेट करना है। जब ये डिसअपॉइंटमेंट है तब हम यहाँ पे इसका लो ट्रिगर होता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी यहाँ पे एग्जिट हो रही है, तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं 284 को और 290 और सो 16 पॉइंट्स। तो आई मीन कुछ क्वांटिटी हमें रीजनेबल जो एग्जिट है हमारे लिए वो ये है। अब उसके बाद क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट, देखिए ये फिर टाइट चैनल है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली करे फिर नीचे आए, यहाँ पे मार्केट जबकि साइडवेज जा रहा है। अब साइडवेज जाने के बाद मैंने यहाँ पे बोला था कि ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, पर इसमें एक देखिए इसमें एक अलग कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मार्केट गैप्स बना रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे गैप बना है, मार्केट ने ब्रेक किया है, मार्केट यहाँ पे भी गैप बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ही ये है कि ये ज़रूर हो सकता है कि हमें कुछ रिजम्पशन मिले और मार्केट स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में हो, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड्स आई कैन से। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, नहीं है। अब ये बार से हम देखते हैं, पहला बार बनता है, नेक्स्ट फॉलो बार बनता है, उसके बाद क्या कोई बुल बार है, नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद क्या नेक्स्ट बार इसका हाई निकलता है, नहीं है, मार्केट नीचे आता है, नेक्स्ट बार इसका लो निकलता है। यहाँ पे ये एक हाई 1 ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे एक हाई 2 ट्रिगर हो रहा है। अब अगर इसे हम देखते हैं तो यहाँ पे लो 1 ट्रिगर हुआ है, यहाँ पे लो 2 ट्रिगर हो रहा है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो जब भी लो 2 ट्रिगर होता है तो वहाँ से लो 2 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। आई मीन लो 2 में यूजुअली बुल्स गिव अप करते हैं, बियर सेल करते हैं, इसलिए हमें ये सेल ऑफ मिला है। तो इसे हम डबल टॉप कह सकते हैं, मार्केट मूव डाउन उसके बाद अप और मार्केट अगेन गोइंग डाउन, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे सेल करना तो कैसे ट्रेड करना है मैंने बताया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पैटर्न को हम ट्रेड कर सकते हैं और ये पैटर्न को हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए रीजनेबल सेल हो सकता है। उसके बाद हमें एग्जिट कहाँ, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, इसके नीचे रखना है, यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो मार्केट मान लीजिए यहाँ पे रिवर्सल आता है तो यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी एग्जिट करनी है। अब हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे गैप क्रिएट करता है। अगर ऐसा बार बन रहा है जबकि बैड फॉलो बार है, मार्केट इसका लो निकलता है तो नेक्स्ट क्वांटिटी फिर आपको एग्जिट करनी होगी। तो
ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड को आपने ओवरऑल आपने कुछ क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे बुक की है, मान लीजिए यहाँ पे, और फिर रिमेनिंग आपको यहाँ पे एग्जिट करनी है। या फिर आपके पास, हमारे पास ये भी चॉइस है कि हम अपने स्टॉप लॉस पे रीला रहे हैं, फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी हैं वो, ये जब मार्केट यहाँ पे आता है तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया है, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक है, पर उसके बावजूद हमें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिल रहा ऑप्शन में। तो दिस सपोज टू क्लोज, मतलब हाँ, ये बार यहाँ तक क्लोज होना चाहिए था, जबकि नहीं हुआ है। देखिए बहुत स्मॉल ऑब्जर्वेशन से हो सकता है आप मिस कर लो, पर कहने का मतलब यही है कि अगर आप यहाँ पे सेल किए हैं तो रिमेनिंग क्वांटिटी अगर ऐसा बाउंस मिलता है, यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप एडिशनल क्वांटिटी यहाँ पे भी सेल कर सकते हो, और जब ये बार क्लोज होता है तब वो एडिशनल क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, और जो हमारा जो 50% क्वांटिटी उसको भी एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, नेक्स्ट बार उसका हाई निकलता है, क्या हमें एग्जिट करना चाहिए? यस, ये यहाँ पे अभी भी कोई गैप बार नहीं बना है, पर बाइंग प्रेशर काफ़ी है, मार्केट यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज बन चुका है, जो कि फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से वायलेंटली ब्रेक करे, इसलिए अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। क्या रीजनेबल सेल था? ये रीजनेबल सेल था। तो ये रेट को जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे ये रिवर्सल पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, रिमेनिंग 50% आपको होल्ड करना है, ये रैली देखना है, ये माइनर रिवर्सल आ सकता है, इसलिए हम होल्ड कर रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस पे रिलाय रहना है। मान लीजिए अगर मार्केट वायलेंटली अगर ब्रेक करता है तो आपका यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, तो ये ट्रेड ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन में निकल जाएगा, जबकि उसके चांसेस कम हैं। फिर हम यहाँ पे सेल करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, यहाँ पे हम एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से बायर्स आ सकते हैं और यहाँ से मार्केट ब्रेक भी कर सकता है, पर ये डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट ने इसका हाई भी निकाल रहा है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट फिर रैली करेगा, फिर यहाँ पे कोई डबल टॉप बनेगा? अभी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो ट्रेडिंग रेंज में हम बाय लो सेल हाई करते हैं, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। इसलिए अब ये पैटर्न में देखिए, हमने यहाँ पे पूरा पैटर्न को होल्ड किया था, यहाँ पे सेल करके, यहाँ पे भी हमने होल्ड किया था, यहाँ पे मैंने बोला था होल्ड करना है, हमें एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ये बोला था कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे सेल किया तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है, हम अभी ट्रेड से बाहर हैं। अब हम यहाँ पे बाय करने के लिए क्यों सोच रहे हैं, हमने यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया है? ये पैटर्न में और ये पैटर्न में क्या डिफरेंस है? पहली बात तो ये कि यहाँ पे पुल बैक आ चुका है, तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लेग है, उसके बाद पुल बैक है, सेकेंड लेग है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, पुल बैक मतलब कोई भी बार प्रीवियस बार का हाई निकालें। यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल माइक्रो चैनल में है, कोई भी बार ने पिछले बार का हाई नहीं निकाला है। अब मान लीजिए आप अगर यहाँ पे बाय कर रहे हो, हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? ये मेक श्योर करना है यहाँ पे हमें कोई बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे कम स्टॉप लॉस यूज़ करना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट इमीडिएटली यहाँ से रैली करे, तो आप अगर यहाँ पे बाय कर रहे हो तो ये यही बार का लो आपके लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप देखना है, फिर मार्केट मूड, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, इमीडिएटली फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉलोअप मिलता है नहीं है, जबकि एक बार फॉलोअप मिलता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर दूसरे बार पे फॉलोअप मिलता है। अब क्या करना चाहिए हमें एग्जिट करना है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो ये बार पे आपका फिर एग्जिट हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमें ये लो ट्रिगर होने तक वेट नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ से फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट EMA से अभी भी लग रहा है कि रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हो सकता है मार्केट और लो ट्रिगर करे और नीचे आए, इसलिए फिर हमें यहाँ पे हम ये बार के बाद 2 बार्स बने तो हम वेट किए थे कि और एक लेग आ सकता है, तो डिसअपॉइंटमेंट है। फिर नेक्स्ट देखना है, अगर यहाँ पे 2G बार भी बनता तब भी मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता, ये जैसे बार क्लोज होता है मुझे एग्जिट करना है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे एक वेज बना है, सी मार्केट मूड डाउन अप, पर अभी भी देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक बुल बार बनता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कुछ बाउंस दे सकता है? हो सकता है मार्केट ये हाई टेस्ट करे, ये हाई टेस्ट करे, मोमेंटम तो स्ट्रांग नहीं है, वो हो सकता है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो ये मेक श्योर करना है कि आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे कम स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बार्स हैं, तो हो सकता है मार्केट वायलेंटली ब्रेक करे। अब सिनारियो चेंज हो चुका है, यहाँ से मार्केट ने काफ़ी समय मार्केट साइड अपने यहाँ पे इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिला है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करें। तो अगर आप मान लीजिए ये बार के बाद
जैसे बार क्लोज होता है, अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हो तो हमें इमीडिएटली इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, हमें मार्केट को थोड़ा समय देना है। पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम इमीडिएट फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये वेज में भी हैं, अगर मान लीजिए और एक लेग भी आता है, तब हमारे पास स्पेस होगा कि अगर हम बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो हो सकता है कोई लो एक बनाए और उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। इसके बाद हमारा लो नहीं बनाया, पर अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, मेक श्योर आप 1/3 क्वांटिटी ट्रेड करो। ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है और आपको फॉलोअप देखना है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए बाय करते हैं, फॉलोअप देखना है, फॉलोअप बैड फॉलोअप है। अब हमें पता है मार्केट और नीचे जा सकता है और लो क्रिएट कर सकता है, तो दो चॉइस है हमारे पास, आइदर आप स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हो, पर जबकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में तो बेटर ये है कि आई प्रीफर टू एग्जिट। तो ये हमारा ट्रेड लॉस में कट होता। तो यहाँ पे आप मान लीजिए जितना प्रॉफिट आपको मिलता उतना आपको यहाँ पे लॉस हो जाता। अब नेक्स्ट देखिए, ये सब में बेस्ट तरीका क्या होता है पता है, बाय करके होल्ड करना जब स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है। पर स्मॉल पुल बैक ट्रेंड को जैसे मैं बता रहा हूँ, इसे ट्रेड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है एंड ओनली फ्यू कैन डू इट। तो ये बस आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए रखना कि ऐसे ट्रेड किया जा सकता है। और अगर आप एंट्री करते भी हो तब भी उसे कैसे मैनेज करना है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे मैनेज करना ट्रेड हर एक की बस की बात नहीं है, हर एक ट्रेड ऐसे मैनेज नहीं कर सकता। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है आपको जैसी एक्सपर्टीज, इससे आपको नॉर्मल ट्रेड्स मैनेज करने में भी बहुत हेल्प मिल सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, भले आप इसको यूज़ ना करो। तो मैं तो ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, तो आई एम यूज टू इट। नेक्स्ट, अब नया लो बनता है। अब क्या हो सकता है, 3 बियर बार्स हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे सिनारियोज के जहाँ पे आपको अगर टाइट चैनल में है तो फिर हमारे पास एक और चॉइस होती है कि हम लिमिट ऑर्डर सेल करें। लिमिट ऑर्डर सेल मतलब क्या, लिमिट ऑर्डर बाय मतलब क्या, जैसे बार क्लोज होता है आपकी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है, आप स्टॉप ऑर्डर मतलब ये बार के ऊपर जब मैं बाय करूँगा तो स्टॉप ऑर्डर होगा, क्योंकि मेरी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। लिमिट ऑर्डर मतलब क्या है, ये जैसे बार क्लोज होता है उसके जब भी नीचे यहाँ पे इमीडिएटली मैं जैसे बार क्लोज होता है तब मैं बाय करूँगा, तो मार्केट मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, फिर भी मैं बाय साइड की एंट्री ले रहा हूँ। तो हमारे पास सेकंड चॉइस ये है कि आप जैसे ये बार क्लोज होता है, इसके नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए रीजनेबल बाय हो सकता है, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो मार्केट यहाँ पे फिर साइडवेज जाता है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हमें एग्जिट करना है, क्या हमें सेल करना है, नहीं, ये सब पैटर्न कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। फिर मार्केट नीचे आता है, देखना है कि रिवर्सल कितना स्ट्रांग है। तो रिवर्सल काफ़ी स्ट्रांग है, अगर ये माइनर होता तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते। तो स्ट्रांग बियर बार है, दैट बियर बार इज क्लोजिंग बिलो प्रीवियस 3 बुल बार्स। उसके बाद फिर एक बियर बार है, बुल बार बनता है, गुड फॉर द बुल्स। पर क्या फॉलोअप है, नहीं है। क्या मार्केट इसके ऊपर, अब ये हो सकता है यहाँ पे कुछ बायर्स हों, मार्केट यहाँ से रैली करें, मार्केट साइडवेज जाए, ये भी हो सकता है मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करें और फिर मार्केट रिवर्स हो। पर हर बार हमें देखा है ईएमए से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी एक डबल टॉप बना है और यहाँ से स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर है। क्या हम जैसे मार्केट इसका लो निकालता है क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। अब वो क्यों हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। ये बाइंग प्रेशर है पर इतना बाइंग प्रेशर सफिशिएंट नहीं है, कोई मार्केट ने यहाँ से उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं है। यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग बियर बार है रिवर्सल इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर बुल बार है, फॉलोअप बुल बार नहीं है, डोजी बार है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। तो मार्केट यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पे सेल करें तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? क्या ये हाई प्रायोरिटी बेट है? अभी भी ये हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारे लिए स्टॉप लॉस 1/3 क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है और स्टॉप लॉस आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। 1/3 पे जितना स्टॉप लॉस लेते हो आप उतना ही स्टॉप लॉस आपको लेना है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, गुड फॉर द बियर्स, फॉलोअप कैंडल गुड फॉर द बियर्स, इसके नीचे वीक है, हम यहाँ पे फिर कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपने जितना भी क्वांटिटी ट्रेड किए हैं 50% क्वांटिटी आपको यहाँ पे एग्जिट करनी है, रिमेनिंग देखना है फॉलोअप कैसा है, बैड फॉलोअप है, बियर बार बुल बार। तो हम इसके नीचे जैसे मार्केट जाता है फिर हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये हमारे लिए एग्जिट होगा। तो इसका जो लो है वो है 370, इसका लो है 369 ऑलरेडी, तो हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट होती है।
फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाय करना है, तो ये फॉलोअप देख के देखिए यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। ये क्लाइमैक्स का काम कर सकता है, ये ज़रूर हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें, पर ये पैटर्न ओवरलैपिंग बार्स हैं। और अगर आप बाय भी करते हो तो ये मेक श्योर करना आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मतलब ये जितना भी बार हैं, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, तो आई नॉट प्रीफर टू बाय हियर। पर मैं बता रहा हूँ कि ये इसको नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ये जो भी बार है। तो 270, 207, 197, 10 पॉइंट्स, तो 187, इसका लो क्या है, ऑलराइट। तो हमारा वो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता अगर आप ये पूरे रैली में भी वेट करते तभी। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे अगर बाय करते तो वैसे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं है तो यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। फिर ये बार पे हम बाय कर सकते हैं, ये बार जैसे क्लोज होता है हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है और हमारे टारगेट क्या हो सकता है, ये में टारगेट हो सकता है। तो ये सब देखना है फॉलो बार्स कैसे हैं। अगर से डोजी बार बनता है तो हमें एग्जिट करना है। क्या हमें यहाँ पे सेल करना है, हो सकता है हम यहाँ पे सेल ना करेंगे, मार्केट साइडवेज जा चुका है, काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, पर ये टाइट चैनल में तो और एक लिफ्ट जरूर आ सकता है। तो ये रिजनेबल सेल हो सकता है ये जैसे बार क्लोज करते हो। पर अगर आप सेल ले रहे हो मान लीजिए यहाँ पे, तो ये हमें मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हमें बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे हमें कम स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉलो BA10 में ले रहे हैं। तो BA10 में आप ले रहे हो तो आप कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हो। तो 163 यहाँ पे आपका ये 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें कितने पॉइंट्स मिले। तो हमारा पहला इसमें 3 पॉइंट का लॉस हुआ था, इसमें हमें 12 पॉइंट्स का लॉस हुआ था, तो हम 15 पॉइंट्स के लॉस में थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे लिए सेल था वो हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे हमें 20 पॉइंट्स मिले थे, तो 5 पॉइंट से हम प्रॉफिट में हैं। और फिर नेक्स्ट जो ट्रेड था इसमें हमें फिर से 80, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर से 20 पॉइंट्स मिले थे, तो हम ऑलमोस्ट 20 पॉइंट से प्रॉफिट में हैं। यहाँ पे एक लॉट पे हम 20 पॉइंट से प्रॉफिट में हैं, एक लॉट पे ही, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 2 लॉट ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि हमें दोनों में से एक लॉट यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। एनीवे हम यहाँ पे प्रॉफिट में हैं, दैट मैटर्स। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे जैसा मैंने बताया, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे एक हमारा सेल बनता 302, तो यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी थी, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं, 30 पॉइंट्स मिलते हैं। आई मीन यहाँ पे अगर हम एग्जिट करते तो 307 और लाइट 24, तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स आप पकड़ लीजिए, 16, तो हमें 20 पॉइंट्स, फिर यहाँ पे 16 पॉइंट्स में हम प्रॉफिट होते हैं, और यहाँ पे फिर रिमेनिंग हम एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम एटलीस्ट 10 पॉइंट्स में प्रॉफिट में होते हैं। तो एनीवेज आई एम लूजिंग माई कैलकुलेशंस, पर हम यहाँ पे प्रॉफिट में हैं। तो यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 10, 30, मान लीजिए आप 30 पॉइंट से प्रॉफिट में हो। उसके बाद फिर आप यहाँ पे बाय करते हो, ये एक रीजनेबल बाय था हमारे लिए, 35, 40, तो 5 पॉइंट्स आपको प्रॉफिट मिलता। उसके बाद फिर यहाँ पे बाय करते हैं, ये बार पे हमें एग्जिट करना है, तो यहाँ पे आपका बाय होता ये ओके। सो ये बार कहाँ है, ये 238, इसका क्लोज है 33, ऑलराइट। तो हमें 5 पॉइंट का यहाँ पे लॉस होता। यहाँ पे ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर मान लीजिए आप ये बाय नहीं लेते हो, ये हो सकता है। अगर आप लेते तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता, अगर नहीं लेते हो तो नो इश्यूज़। 342, 370, तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। यहाँ पे बाय करने के बाद जैसे मैंने बताया आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। यहाँ पे आप बाय करते तो यहाँ पे फिर से आपको 2052, 14, तो यहाँ पे फिर से 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। यहाँ पे हो सकता है आप सेल ना करो, ये रिजनेबल सेल हो सकता है। यहाँ पे साइडवेज जाने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा, मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी साइडवेज जा चुका है, इसलिए। तो ओवरऑल 30-40 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे, बाय।